Good evening, I'm Shivani Wazir Pasreech, and I'd like to welcome you all on behalf of the Kunwar Viyogi Memorial Trust to the Kunwar Viyogi Utsav. Today is the fifth Utsav. The first four were held in Jammu in the city of Temple Bells live, and people thronged to see what was it that Poonam Jamwal was putting together. What was it that Nisha was supporting? What was it that Kunwar Viyogi had left behind as a heritage? He was a man in service of the nation, but at a very young age, he discovered he had a talent, or rather a passion for writing. And that passion culminated in his first book, for which he got the Sahitya Academy Award when he was as young as 38 years old. Ghar is epic, and his works are part of the MA in Dogri program in Jammu University. So what started out as a way to give direction to our heritage of Dogri, where is it going? Can we help it reach somewhere? And for that, this trust was set up and started out with giving scholarships to young people, to students in colleges and schools to achieve excellence in this field. Slowly, an app was set up so that more people could have access to Dogri and could enhance their knowledge as well as their heritage. And then before long, culture is the one language that reaches out and speaks to all. So before long, compositions were made of Dogri songs, and these were shared on various platforms. It wasn't long before the Kunwar Viyogi Utsav began, and this is the first Utsav in our country, the first Utsav of India to go live like this online. We have 7 days of fantastic programming, but what begins with a good energy is what sustains through not just 7 days, but a lifetime. And that's what our heritage is about. It's about a lifetime of people contributing, of a culture evolving, and we cannot afford for it to just disappear. I'd like to invite Mr. K.K. Gandhi. He is an avid artist based in Jammu. So he's made of the real Mitti ka person from Jammu. His landscape artwork has been showcased in 18 solo shows, more than 100 group shows in India and abroad, and about 100 national and international art camps and art symposiums he's been a part of. So his works come alive with the warmth of the sun and mountains. And what can I say? He's a man of that very, very magical state. So, ladies and gentlemen, Mr. K.K. Gandhi. आज का जो सब्जेक्ट है इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो इससे बात करना मेरे ख्याल में मैं पीछे जाना चाहूंगा। 2008 जब से रिसेशन आया, तब रिसेशन के पहले क्या था कि आर्ट मार्केट का एक बूम था। तो वो क्या था कि वो उसमें शेयर मार्केट के बाद एक मार्केट था, आर्ट मार्केट, तो सब लोग उस पे बिना देखे उस पे इन्वेस्ट किए जा रहे थे। तो जैसे वो एक डाउनफॉल आया, तो उसके बाद वो एक सन्नाटा इंडिया में, खासकर पूरी दुनिया में भी, तो एक सन्नाटा सा आ गया कि वो आर्टिस्ट कहाँ जाए, क्योंकि वो वही आर्टिस्ट उन दिनों से लेके आज तक सरवाइव किए, जो वो हाईली क्रिएटिव थे, जो काम करने वाले थे, जिनका पेंटिंग में, जिनके आर्ट में कुछ कोई फ्रेग्रेंस था, वही अब तक सरवाइव कर रहे हैं। बाकी वो गायब हो गए, है ना। उसमें मार्केट क्या है कि इंडिया का जो मार्केट है, मैं आंकड़े 2018 के आंकड़े बताऊं आपको, जहां तक मैंने सुना है। हेलो, तो वो वहां पे क्या है कि जो इंडिया का आर्ट मार्केट है, और एज कम्पेयर टू चाइना का आर्ट मार्केट, चाइना का आर्ट मार्केट में जो शेयर है आई थिंक 29% है, और यूएस का आर्ट मार्केट मेरे ख्याल में 31%। हैरानगी की बात है कि इंडिया का मार्केट सिर्फ 1% है ना, सिर्फ 1% इंडिया का आर्ट मार्केट, क्योंकि यहाँ पे सो मेनी गैलरीज हैं, सो बड़े आर्ट कलेक्टर, आर्ट प्रमोटर बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन फ्यू जो रियल आर्ट प्रमोटर है, वो उनको छोड़ के बाकी सब आर्टिस्ट लोगों के साथ इंसाफी नहीं किया उन्होंने। they were busy into looting and cheating and exploiting the artist। तो मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ा कारण था कि जिसमें आर्ट मार्केट उभर नहीं पाया। अभी क्या है कि वहां से चल के अभी लॉकडाउन, जो पेंडेमिक आ गया, तो इसमें तो हालत कैसे करेंगे, इसको कैसे सरवाइव करेंगे आर्टिस्ट। मैंने पर्सनली मैं तो कई आर्टिस्टों से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने देखा आर्टिस्ट लोगों का हालत इतना खराब है, इतना ज्यादा खराब है, जो अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में आए हैं, वहां पे किराए पे रहते हैं, किराए पे स्टूडियो है,
तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। वर्चुअली क्या है कि शोज, अभी कितने सारे शोज हो गए, उसमें ये फायदा हुआ कि जो संडे मंडे आर्टिस्ट थे वो भी इंटरनेशनल हो गए, काफी काम देखने को मिल रहा है। वो जो लोग जो कभी काम देखे नहीं थे वो भी देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे। लेकिन वर्चुअली ये भी देख रहा हूँ कि कुछ आर्ट मार्केट जो फ्लोरिश होना चाहिए, जो जो बहुत लोगों के निकलने चाहिए, जो आर्टिस्ट का सर्वाइवल के लिए, वो बहुत कम है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम पेंडेमिक में, और आर्टिस्टों के लिए बहुत बढ़िया टाइम भी है कि वो घर बैठे 6 महीने कुछ करें। इंटरेस्टिंगली आज ही बताऊं आपको मैं कि मेरा एक नेशनल आर्ट कैंप ओपन हुआ, सुबह था उसका इनॉग्रेशन, वर्चुअली था। उसमें 17 आर्टिस्ट हैं। तो मेरे ख्याल में जो कलेक्टर हैं, जो आर्ट लवर हैं, उनके लिए तो, गैलरिस्ट हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया टाइम है ये, इट्स अ हाई टाइम टू इन्वेस्ट इन आर्ट। अभी क्या है कि वर्चुअली आप अभी जो आज जो कैंप शुरू हुआ उसमें एक टोकन ऑफ मनी, एक ऑनरेरियम है सब आर्टिस्ट के पास। उसके अलावा 1% भी उनका एक्सपेंडिचर नहीं है, 1% भी नहीं, क्योंकि एक मीडिया में डाला, सोशल मीडिया में डाला, एक पोस्टर बनाया और वो आर्टिस्ट अपने स्टूडियो से पेंटिंग दे देंगे उनको। पहले तो आर्ट कैंप करने के लिए कितना वो खर्चा होता था, बाहर लेके जाते थे उनको, आना जाना, रहना, खाना पीना। अब हम लोग ये क्यों नहीं सोचते, हमारा कंट्री जो इंडिया है उसका पॉपुलेशन कितना है, उसका 130 करोड़, तो वो मोर देन दैट, तो वो उसमें आप 1%, उसमें आधा % लीजिए ना, आर्ट लवर हो सकते हैं वो कितना। आप मैं जम्मू में रहता हूँ, 20 लाख लोग रहते हैं, उसमें कितने % आर्ट लवर हो सकते हैं, है ना। तो वो हम लोग विदेशों को देखते हैं, कितना बड़ा मार्केट है। आज इंडिया जो है, आज इंडिया पुराना वाला इंडिया नहीं है, बदला हुआ इंडिया है ना। तो वो मैं लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, 6 महीनों में मैंने जो पिछले मैं नॉर्मल डेज में हमारा 15-16 इवेंट होते थे बाहर, हमारे इन्विटेशन, आर्ट सिम्पोजियम, आर्ट कैंप और लाइव पेंटिंग सब, एज कंपेयर टू दैट टाइम, और ये अभी जो पेंडेमिक टाइम है, मेरा वैसा ही चल रहा है, वैसा ही बिजी हूं मैं। अभी 2 दिन पहले मेरा लंदन पेंटिंग गया है, अभी भी इतना बिजी हूं कि मेरे को मांगते हैं बहुत मेरा। तो उसमें क्या है कि आर्टिस्ट को ऐसा नहीं है कि पेंटिंग बनाया और वो बाहर से लोग आएंगे और आपके घर में आके देखेंगे कि क्या बनाया तो लेके जाएंगे, कैसे पता चलेगा। पीपल शुड नो व्हाट आर यू डूइंग, ये आपको खुद करना है ना। पीपल शुड नो कि आप क्या कर रहे हो, आप कितने प्लेटफॉर्म है। अभी ये ऐसा नहीं है कि मैं जम्मू में बैठा हूँ, मैं जम्मू का नहीं, मैं इंटरनेशनल एक सिटीजन हूँ। इंटरनेशनली सब लोगों को मैं देख सकता हूँ, सब लोगों को कितने सारे मीडियम है जो आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। वो बाकी ईमानदारी जो है, वो इंडियन जो आर्ट प्रमोटर है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, उनको आगे आना होगा ईमानदारी से, तो जो तभी हो पाएगा। अदरवाइज जो सन की बात कर रहे थे वो, क्योंकि मैं जम्मू में रहता हूँ, अभी जम्मू में क्या है कि एक विंडो खोलो तो वो एक लैंडस्केप, एक सूरज की किरण आपके रूम में आती है। तो वो क्या है कि वो जो आजकल आर्ट इतना एक्सपेरिमेंटल हो गया कि वो कई बार तो ये आर्टिस्ट को पूछो उसको भी मालूम नहीं होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि वो एक आर्टिस्ट का जर्नी होता है। आर्टिस्ट का जर्नी क्या है कि वो उसका डे टू डे उसका जो ट्रेवलिंग है, उसके बाद वो उसका थॉट प्रोसेस एक्सपेरिमेंटल होता जाता है। आजकल के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, वो देखते हैं किस्सा महंगा है तो वो नेट से निकालते हैं और कलर फेंकते हैं, तो वो ये हो गया आर्ट। वो जमाना हैज गॉन, नो, दैट इरा हैज ऑलरेडी गॉन। तो वो आपको क्या है कि मैं जो करता हूँ, मेरी जो रूट्स हैं, मेरे जो हिमालय है, उसपे सन है, फिर उसके बाद लेपा हिमालय, देवदार है, रोमांटिक मिस्ट है, वो ये मेरी अपनी रूट्स है। और उसमें जो नोमैड्स हैं, वो लोकल उनके ऑर्नामेंट्स हैं, उनके कपड़े हैं, वो उनका सराउंडिंग जो मिस्ट चलती है जब, तो वो उसको मैं फील करता हूँ। तो ये मैं अभी जम्मू में बैठ के बिहार को लैंडस्केप पेंट करूँ तो उसका कोई मायने नहीं है। तो आई लव टू माई